Hello students, I am Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur and I welcome you all to the lecture number 3 of the chapter Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids in Chemistry of class 12th. So till now we had discussed the categories of carbonyl compounds that included aldehyde, ketone, carboxylic acids, acyl halides, acid anhydride, esters and amides. And I had also shown the general structure of all these categories. Moreover, we also discussed the rules that are needed to be applied when you are naming the aldehydes and ketones according to the common name system and the IUPAC name system. So the rules that we discussed that were in very detail, and after that we also discussed a lot of examples in both the systems. We also did an interesting exercise where I wrote the names, like the names in both the systems, the common name also and the IUPAC name also of the same compound, just for the purpose of comparison, so that you are able to make out the difference between both the systems. ठीक है, तो वो उससे क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाती है if you are able to make out the difference, ये दोनों में difference क्या है. Okay, so today I plan to do a similar exercise, but it's reverse of what we had done in the previous lecture. It's like we'll start with the name of the compound. मतलब the name of the compound would be given, and you need to draw the structure of that compound. ठीक है, पहले क्या था कि structure given था and you need to give the common name and the IUPAC name. अभी you need to do what? You need to give the structure of that compound. So that will be a nice revision for you all. So let's start. Okay, so what you can do is when I write the name of that compound, so if you think that you are thorough with the concepts that or the rules that we had discussed previously, you can do is mute when you can pause the video when I write down the name of that compound, and then you can draw the structure on your own. ठीक है, फिर after that you can again restart the video and see that whether you had drawn the correct structure or not. So we'll start with the first example. That's 3-methyl butanol. ठीक है, तो अच्छा, ये नाम देख के आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सबसे पहले आप ये सोचिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एंडिंग जो है वो दैट इज AL and AL is used as a suffix for naming the aldehydes. So that means this is a aldehyde, definitely. After that, you can see that it is butane. Butane मतलब 4 carbon atoms, 4 carbon atoms. So there will be 4 carbon atoms in that chain, aliphatic chain. Also, it's 3-methyl. 3-methyl मतलब कि the substituent is attached. This methyl substituent is attached at the 3rd carbon. The carbon which is numbered 3rd. ठीक है, so let's start. First of all, because we have got the number of carbon atoms, so we will draw this chain. And obviously because it is butanol, so the aldehyde group is always attached at the last position. So this will be HO. अच्छा, IUPAC में you know that we do the numbering like this. ठीक है, मतलब the number 1 is given to this carbonyl carbon itself in the case of aldehyde. ठीक है, aliphatic aldehyde. तो ये 1 है, that means कि 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली ऐड द सब्स्टिट्यूएंट. ये कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है. इट कैन बी एनी हैलोजन और एनी अदर ग्रुप. इट कैन बी इथॉक्सी, मिथॉक्सी और एनी अदर अल्काइल ग्रुप आल्सो. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन दिस नेम. 3 पे मिथाइल है, 4 कार्बन आटम है और एल्डिहाइड है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट वी विल डू एट द एंड, we will simply add the remaining hydrogen atoms. ठीक है, पहले इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि you might not know that how many hydrogen atoms you need to add. क्योंकि जब when you add all the substituents and all, only then you can get कि कितने हाइड्रोजन उस कार्बन पे आएंगे. ठीक है, so the best way is पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लो and at the end add the hydrogen atoms. So this is the structure for this compound. Now coming to the next one, it's para नाइट्रोप्रोपियोफेनोन. ठीक है, ये नेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इट्स नॉट दैट. व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट, यू विल गेट एवरीथिंग.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये जो फिनोन ग्रुप है ये क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोन मतलब फिनाइल ग्रुप है और उसमें कीटोन लगा हुआ है, क्योंकि ओन मतलब ONE जो सफिक्स दैट इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द कीटोनिक ग्रुप। और फिनोन है दैट मींस देयर इज अ फिनाइल रिंग लाइक दिस। ये हमारी फिनाइल रिंग है और इसमें क्या लगा हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड O ऐसे तो आ नहीं सकता कीटोन, दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज इस वाले कार्बन पे देन देयर विल बी 5 बॉन्ड्स, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कार्बन के साथ में। सो एक्चुअल में फिनोन ग्रुप क्या होता है, ये होता है, यू हैव दिस थिंग, ठीक है, ये होता है फिनोन ग्रुप। ये चीज आप याद कर लो या फिर याद हो जाएगा व्हेन यू प्रैक्टिस। तो दिस इज द फिनोन ग्रुप। अच्छा, अब फिनोन के पहले जो लगा होता है दैट इज इन दिस केस इट इज रिटन एज प्रोपियो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई चेन भी हो सकती है या फिर खुद फिनाइल ग्रुप हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो प्रोपियो मतलब 3 कार्बन एटम। तो जो भी फिनोन के पहले लगा होगा, मतलब जैसे इस केस में ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये दूसरा वाला बॉन्ड है कार्बन का, ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, इधर पे जो भी ग्रुप है, ठीक है। तो इस केस में बिकॉज प्रोपियो इज देयर, तो क्या हो जाएगा, लेट मी ड्रॉ द फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिनोन ग्रुप, ठीक है, दिस इज द फिनोन ग्रुप। अब बिकॉज ये वाला बॉन्ड इस द कार्बन के दूसरे साइड पे क्या आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन जो भी फिनोन के आगे लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज रिटन एज प्रोपियो, दैट मीन्स देयर आर 3 कार्बन एटम्स। सो वन विल बी दिस कार्बन एटम एंड देयर आर 2 मोर कार्बन एटम्स, ठीक है। एंड देन वी विल सिंपली ऐड हाइड्रोजन हियर। प्रोपियो मतलब फिनोन में 3 कार्बन एटम की चेन और है, तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। नाउ इट्स पैरा नाइट्रो। तो पैरा हम कौन सी पोजीशन से देखेंगे, जिस पोजीशन से ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, बिकॉज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज द कीटोनिक ग्रुप इटसेल्फ। सो हम यहीं से पैरा पोजीशन को काउंट करेंगे। पैरा मतलब ऑपोजिट होता है, 1,4 वाला ग्रुप होता है। आई टोल्ड यू ना, पैरा मतलब 1,4, ठीक है। तो यहाँ से जो पैरा होगा, यहाँ पैरा पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। नाइट्रो मतलब NO2। So this is the para-nitropropionone. This is the final structure. Next is para-methyl benzaldehyde. ठीक है, तो एज यू नो जैसे बेंजल्डिहाइड क्या होता है, सिंपली बेंजीन रिंग एंड टू दैट बेंजीन रिंग CHO ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे मिथाइल, ठीक है। सो दैट इज सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली यू नीड टू write down this benzene ring. This is benzene. Now this is benzaldehyde. This compound is known as benzaldehyde. और उसमें पैरा पे मिथाइल है। Again, this substituent can be anything. वो it can either be any alkyl substituent or it can be halogen or it can be some ethoxy group or whatever. Next is 4-methyl pent 3-2 on, ठीक है। So first let's see what kind of information is given by this name. First of all, see the number of carbon atoms. Pent मतलब 5 carbon atoms are there in the chain. So first let's draw the number of carbon atoms, this chain, ठीक है, this is the chain. Now what it is given is कि 2 पे on है, मतलब 2 on मतलब first of all on मतलब कीटोन होता है। नाउ सेकंड पोजीशन पे मतलब सेकंड कार्बन पे कीटोन लगा हुआ है, मतलब कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनिल, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे। नाउ 3-ene इज फॉर अ डबल बॉन्ड, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। सो वी हैव कंसीडर्ड ओन, वी हैव कंसीडर्ड दिस डबल बॉन्ड, वी हैव कंसीडर्ड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नाउ द लास्ट थिंग इज 4-methyl, मतलब fourth the carbon which is numbered as 4 will have a methyl group as a substituent. So 1 2 3 4 we will simply add a methyl group over here, okay. So this we have added all the information that was given to us in the name and in this carbon hydrocarbon chain, okay. So at the end what we will do is we will simply add the remaining hydrogens. This is CH3, this is already done, double bond O, this is CH,
This is again done. This is again CH3. ठीक है, तो हर कार्बन के पास में every carbon should be attached to 4, or you can say every carbon should have 4 bonds, either be the pi bond or the sigma bond. Total 4 bonds होने चाहिए. So this is the final structure. Now, okay, we will do one complicated example. थोड़ा typical लगेगा, like when you will write down the name, but it's not that difficult. I'll show you. Para dash, dihydroxy benzophenone. So this is the name given to us. Now we'll see what all information can we gather out. पहली बात तो you can see कि ON है, मतलब ONE, that means it will be a ketone, मतलब एक double bond O, मतलब there will be a carbonyl carbon in between somewhere. Now it is phenone. ठीक है, कीटोन तो है लेकिन बिकॉज किसके साथ में कोई एलिफैटिक चेन नहीं लिखी हुई है. ठीक है, जैसे ब्यूटेनोन या प्रोपोनोन ऐसा नहीं है, इट इज फिनोन. तो एज आई जस्ट टोल्ड यू इन द सेकंड एग्जांपल दैट वी वर डिस्कसिंग कि जो फिनोन ग्रुप होता है वो ये वाला ग्रुप होता है. मतलब एक फिनाइल रिंग है विच इज अ सिंपल बेंजीन रिंग, एंड दैट ऑन दैट रिंग द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड. मतलब कार्बोनिल ग्रुप ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, राइट. तो ये तो हो गया सिंपल कीटोन वाला, जो अगर दोनों तरफ R लगा देंगे कोई भी एल्काइल ग्रुप. नाउ फिनोन इज व्हेन you have attached a phenyl ring over one part on the one side of this carbon, so that will be a phenone. ठीक है, अब उस phenone के आगे जो भी word attached है या फिर जो भी group attached है, that is the other part. ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या था, phenone के आगे propio, that means 3 carbons, so that means ये वाला जो होना चाहिए total there would be 3 the chain of 3 carbon atoms. ठीक है, अब because यहाँ पे benzo लिखा हुआ है, benzo means a benzene ring, दैट मीन्स यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप आएगा. ठीक है, तो ये चीज यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू. इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि फिनोन मतलब ये वाला ग्रुप, और फिनोन के आगे जो भी लिखा हुआ है, जो भी ग्रुप लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे अटैच कर देना है इस ऑन द अदर साइड ऑफ द कार्बन एटम. ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि बेंजोफिनोन जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा. सो फर्स्ट let's draw this structure, it will be easy. ये डबल बॉन्ड O, this is a phenyl group, this is a double bond. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेंजोफिनोन. now talking about the substituents, first of all this para thing, para जो होता है जैसे ऑर्थो मेटा और para, that is used for indicating the position of the substituents in the case of ring. ठीक है, in the case of cyclic compound. तो that means कि हम इस रिंग, हम इन दोनों रिंग के बारे में बात करें. ठीक है, दूसरी चीज, बिकॉज इट इज रिटन एज पैरा एंड पैरा डैश, तो पैरा डैश इज यूज फॉर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑन द इन द केस ऑफ अदर रिंग. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग है, इसका मतलब है कि हम दोनों रिंग, अगर ऐसा आप कहीं पे भी देख रहे हो, दैट मीन्स कि 2 रिंग्स आर इन्वॉल्व और उन दोनों रिंग की पोजिशन यहाँ पे दे रखी है. ठीक है, तो पैरा और पैरा डैश. ठीक है, दे आर द पोजिशन इन द केसेस ऑफ बोथ द रिंग्स. नाउ दिस इज डाइहाइड्रोक्सी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है. ये लोकेशन होता है, दिस इज द लोकेशन कहाँ पे है, एंड दिस इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. ये लोकेशन ये किधर कहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ये 2 चीजें हैं. ठीक है, सो डाइहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी इज द OH ग्रुप. इसका मतलब 2 OH ग्रुप लगे हैं दोनों रिंग में, सिंगल पैरा पोजिशन पे. ठीक है, तो सिंपली व्हाट वी विल डू इज एक OH यहाँ पे लगा देंगे पैरा पे, और दिस इज पैरा डैश, एक OH यहाँ पे. सो दिस इज द कंपाउंड पैरा डैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन. ठीक है, सो आई थिंक दिस वुड हैव बीन नाइस रिविजन. you must have remembered all the rules that we had discussed in the previous lecture. So now I would like to move on to the next topic, which is the structure of the carbonyl compound. I have already discussed the structure, but now we will discuss in detail. Okay? If we simply talk about
द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि वी हैड ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स टिल नाउ. दिस इज दिस. ठीक है. नाउ व्हाट ऑल डिटेल्स can we tell about this structure is, like we can discuss about the hybridization, we can discuss about the bonds there are of two types, as you know, sigma bonds and the pi bonds. ठीक है. तो कौन से bonds हैं which are involved in this kind of structure, then what is the geometry of this structure, then जो orbitals हैं, जो s और p orbitals होते हैं, वो overlap कैसे कर रहे हैं, what is the bond angle, and we can also talk about the electronegativity of the atoms which are involved. Okay, so all these things you can just for the purpose of, for the purpose of information. Okay, so let's first start with the hybridization. So ये जो carbonyl carbon है, that is sp2 hybridized. This carbon is sp2 hybridized. Okay, and this hybridization and all, you must have studied these concepts in class 11th. So if you are not clear with these concepts, you can go out and check the notes of your class 11th chapters and all. So there you will get clear, but I am not discussing these in very detail because then we will just deviate from our main topic. Okay, so that means carbon is sp2 hybridized, and what are the bonds that are involved? ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड होता है जब एक सिग्मा बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड आता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो एटम्स के बीच में. सो देन वी कॉल इट एज अ पाई बॉन्ड. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, तो क्या होगा, बिकॉज यू कैन सी कि इसमें 4 बॉन्ड्स इन्वॉल्व है पहली बात तो. ठीक है, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, सो सिग्मा. दिस इज ऑल्सो अ सिंगल बॉन्ड, सो सिग्मा. और डबल बॉन्ड में भी जो एक बॉन्ड होता है दैट इज अ सिंगल, एंड उसके अलावा जो दूसरा बॉन्ड होता है दैट इज अ पाई बॉन्ड. ठीक है, तो ये डिनोट करते हैं. दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर आर 3 sigma bonds involved. There are 3 sigma bonds involved in this carbonyl group, and I have also mentioned कि कहाँ पे हैं. ठीक है, उसके बाद you must have seen कि देखो कार्बन के पास, कार्बन एटम में you have 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मतलब उसके जो वैलेंस वाला शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, जो कि खाली होते हैं. ठीक है, अब इट्स द चॉइस विद द कार्बन एटम, और यू कैन से कि जिस कंपाउंड का पार्ट है वो कार्बन एटम, उस पे डिपेंड करता है कि ये दीज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाउ आर दे बीइंग यूज्ड. ठीक है, मतलब अगर आप ये देखो कि सपोज मीथेन. ठीक है, अब इसमें 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन मतलब देयर आर 4 हाइड्रोजन व्हिच आर अटैच्ड विद हेल्प ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड्स. इसका मतलब है कि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक वैलेंस, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एटम इज बीइंग शेयर्ड विद द हाइड्रोजन. ठीक है, विद द ये शेयरिंग हो रहा है. एक एटम जो है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इज प्रोवाइडिंग एंड एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इज प्रोवाइडिंग, एंड ये दोनों आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड. बट नाउ अभी हम क्या डिस्कस करें, वी आर ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, ऐसा होता है. ठीक है, तो the 3 valence electrons of this carbon atom, they have formed the sigma bond simply. लेकिन जो 4th valence electron होता है, it remains in its p orbital to form the pi bond with the oxygen. ठीक है, ये वाला जो as I discuss के 3 sigma bond है, उन्होंने तो अपना सिंगल बना लिया, लेकिन जो pi bond है वो कब बनेगा, when the 4th valence electron will जो कि that is present in the p orbital, that will form the pi bond with the oxygen. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग हो रहा है. ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल्स, दोनों की ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेन, ये जो प्लेन है, जितने भी एटम, जितने भी ग्रुप्स लगे हैं कार्बन के आसपास, वो किस कौन से प्लेन पे हैं. ठीक है, सो द कार्बोनिल कार्बन एंड 3 एटम्स, मतलब ऑक्सीजन एंड द 2 अदर एटम जिससे भी वो कार्बन अटैच्ड है. ठीक है, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. ठीक है, जिस प्लेन में, जब सपोज करिए हम
इसी प्लेन ऑफ पेपर में काम कर रहे हैं, तो उसी प्लेन पे तीनों एटम्स will lie. The carbon and the three other atoms, they lie on the same plane, and the pi electron cloud is above and below the plane. ठीक है, मतलब ये कार्बन है, सपोज करो यहाँ पे एक R ग्रुप है और ये R प्राइम है, ठीक है, तो C O R और R प्राइम, all these they will lie on the same plane. बट ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं जिससे कि पाई बॉन्ड बन रहा है, दे आर अबव एंड बिलो द प्लेन. ठीक है, जैसे आप देखते हो एक्स और वाई एक्सिस होता है, दे आर इन द प्लेन. सपोज आपने ये एक्स बनाया, ये वाई बनाया, एंड यू सिंपली राइट जेड एज दिस, बट जेड इस प्लेन पे नहीं है. जेड एक्सिस एज यू नो दैट इट्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, वो आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, तो इट्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. सो सिमिलरली ये जो जेड है उसी के तरीके जो पी ऑर्बिटल्स है ना, दे आर ऑल्सो अबव एंड बिलो द प्लेन, जो शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है. ठीक है, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड एंगल. द बॉन्ड एंगल इज सिंपली 120 डिग्री बिकॉज इट इज अ ट्राइगोनल कोप्लेनर ज्योमेट्री. एज वी डिस्कस कि ये जो एटम्स हैं ये सारे एक ही प्लेन में हैं. ठीक है, तो जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ए है, बी है, सी है, ये डी है. ठीक है, जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन विच बी सी एंड डी दे आर ऑल ऑन द सेम प्लेन, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री हो जाता है. ठीक है, ये भी यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th. द हाइब्रिडाइजेशन, द ज्योमेट्री, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे दिस कार्बोनिल ग्रुप की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल कोप्लेनर ज्योमेट्री. ठीक है, और इस ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो एज यू मस्ट बी अवेयर दैट बिकॉज सी देयर आर टू मेन एटम्स, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, सो द लाइक ऑक्सीजन हैज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन. ठीक है, तो जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, it causes the polarization of the carbon oxygen double bond. Polarization मतलब what is electronegativity? First of all, electronegativity is the capability or it is the ability of any atom to attract the electrons towards itself. ठीक है, तो अगर कोई atom has a higher electronegativity, that means that it has more ability to attract the electrons towards itself. ठीक है, तो as you see ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आ जाएंगे और कार्बन से दूर चले जाएंगे. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन विल गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट लाइक इफ आई एम राइटिंग, आई विल बी राइटिंग ऑल्सो, तो इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो व्हाट विल इट डू? इट विल पोलराइज द सी डबल बॉन्ड ओ. पोलराइजेशन मतलब चार्ज का सेपरेशन, ऐसा समझिए. इजी लाइक इन सिंपलर वर्ड्स यू कैन से यू कैन कॉल पोलराइजेशन एज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस. मतलब अभी न्यूट्रल बॉन्ड है, फिर बाद में आफ्टर पोलराइजेशन व्हाट विल हैपन इज प्लस चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग. ठीक है, तो सपोज इफ यू टॉक इन द सेंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, तो ये न्यूट्रल है क्योंकि अभी इसमें आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड. ठीक है, नाउ आफ्टर पोलराइजेशन व्हाट विल हैपन इज O will attract the electrons towards itself, तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ज्यादा होंगे, so it will carry a negative charge, and carbon will carry a positive charge. ठीक है, so we call it as a dipolar because this is after polarization. Dipolar मतलब दो पोल बन चुके हैं. Di मतलब दो and polar, that means there are two poles, positive and negative. So this was all about the structure of carbonyl group in detail. ठीक है, so now I would like to move on to the preparation of aldehydes and ketones. So see, there are some common ways of preparing aldehydes and ketones. ठीक है, and there are some separate ways. Separate मतलब कि
उन तरीकों से, यूजिंग दोज वेज यू कैन आइदर प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड यूजिंग सम अदर वे यू कैन प्रिपेयर कीटोन। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द कॉमन वेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब इनसे दोनों ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट कॉमन वे ऑफ द प्रिपरेशन इज यूजिंग द अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से बहुत सारे तरीके से we can prepare aldehyde and ketone. So we'll discuss all the techniques, just all the ways how can we prepare. So first of all, see, so the first is by using the alcohol. ठीक है, तो alcohols भी, you know, there are three types of alcohols: primary, secondary, and tertiary. As you have that we had discussed in the previous chapter when we were discussing the alcohols in detail. So there are one like primary, secondary, and tertiary. ठीक है, अब देर आर टू मेथड जिससे कि वी कैन यूज अल्कोहल्स टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, फर्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन, जिसमें कि वी विल यूज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एंड द सेकेंड वन इज द डिहाइड्रोजनेशन। सो दीज आर द टू टेक्निक्स by which we can use alcohols to prepare aldehydes and ketones. In the case of oxidation, we use the oxidizing agent. That agent can either be a weaker oxidizing agent or it can be a very strong oxidizing agent. दोनों ही केसेस हम डिस्कस करेंगे कि वीक के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा। Now, in the case of dehydrogenation, ठीक है, so as the name suggests, dehydrogenation मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, डी मतलब रिमूवल एंड हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। सो व्हाट विल हैपन इज कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम दैट अल्कोहल एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो दो तरीके हैं, सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स ये तीनों ही अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं व्हेन यू आर यूजिंग अ सर्टेन कंपाउंड, अ सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो बट आई विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग क्लियर। तो व्हाट हैपेंस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कैसे? बाय द क्लीवेज ऑफ द OH एंड द CH बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे आई विल ड्रॉ, सपोज करो ये हमारा अल्फा कार्बन है OH। ठीक है, ये अल्कोहल है, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू ऑक्सीडाइज एनी अल्कोहल, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज ये वाला जो बॉन्ड है, आई विल यूज रेड कलर मे बी, एक ये वाला जो बॉन्ड है और एक ये वाला जो बॉन्ड है, इसका क्लीवेज हो जाएगा एंड द रिजल्ट वुड बी दिस ग्रुप। ठीक है, एंड वी आर कंसर्न विद दिस ग्रुप, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अच्छा, आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर दैट दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमारा अल्कोहल कैसा है। ठीक है, विच काइंड ऑफ अल्कोहल वी आर टेकिंग, दैट विल टेल अस दैट आइदर एल्डिहाइड इज बीइंग प्रिपेयर्ड और अ कीटोन। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट आई विल डिस्कस द प्राइमरी ओवर हियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्कोहल्स। ठीक है, टर्शरी को 3 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी बोलते हैं और प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लेट मी डिस्कस कि ये क्लासिफिकेशन कैसा है। सपोज ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक कंपाउंड है। ठीक है, अब कार्बन, ये 4 बॉन्ड्स हैं इस तरीके से। ठीक है, सो सी दिस द कार्बन टू विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड, उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, सो द कार्बन टू विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, नाउ इफ दिस अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन देन इट विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है और बाकी दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, सो ओनली देन इट विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल। इफ द अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, मतलब ये अल्फा कार्बन है और इससे ये इन टर्न 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है ऐसे ऐसे और एक हाइड्रोजन है, देन इट विल बी अ सेकेंडरी अल्कोहल। एंड द थर्ड वन इज व्हेन दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स और एक भी हाइड्रोजन इस कार्बन, अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है,
देन इट इज नोन एज टर्शरी कार्बन एटम। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ लेट्स सी कि व्हेन ऑल दीज अल्कोहल्स दे रिएक्ट विद द डिफरेंट कंपाउंड्स, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज, सी सपोज दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। एज आई टोल्ड यू कि प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन होते हैं उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है बिकॉज दिस अल्फा कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एंड 1 अदर कंपाउंड। जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इट रिजल्ट्स इन एन एल्डिहाइड, और जब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इट रिजल्ट्स इन एन कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया है, यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि whenever any alcohol is getting oxidized, ठीक है, तो that will first get oxidized to an aldehyde and then to an carboxylic acid। ठीक है, प्राइमरी की बात हो रही है, and then to an carboxylic acid। अब ये इस रिएक्शन का पेस क्या है, मतलब दिस रिएक्शन इज फास्ट और दिस रिएक्शन इज स्लो, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। मतलब अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है, सो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द एल्डिहाइड, डायरेक्टली हमारा एसिड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और यू कैन सी इफ वी आर यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया है, तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट एल्डिहाइड, वी विल डायरेक्टली गेट गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड वाइस वर्सा, इफ वी आर यूजिंग अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जिससे कि रिएक्शन का पेस कम है, ठीक है, सो वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। ठीक है, तो इफ वी वांट एन एल्डिहाइड, वी विल यूज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इफ वी वांट carboxylic acid, we will use a stronger oxidizing agent. So now I give you the names of the oxidizing agents that are generally used. So as I told you, strong oxidizing agent क्या होता है, acidified KMnO4। ठीक है, what it will give, it will directly give the acid क्योंकि वो strong है। ठीक है, तो रिएक्शन का पेस बहुत ज्यादा होगा एंड वी विल डायरेक्टली गेट एसिड। तो एंड सपोज इफ वी वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट दिस एल्डिहाइड स्टेज ओनली, मतलब एक ही स्टेप चाहते हैं और फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, सो वी विल यूज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीकर में क्या क्या आ जाते हैं, आई एम यूजिंग OA फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे 2 हैं, फर्स्ट इज CrO3 इन द एनहाइड्रस मीडियम, ठीक है, और दूसरा है PCC। तो PCC इज pyridinium chlorochromate। ठीक है, सो दीज आर 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दीज आर द 2 वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिसमें कि व्हेन यू विल यूज दीज 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू विल गेट द एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो यूजिंग these oxidizing agent on the primary alcohol we get the aldehyde। तो PCC, ओके, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है लाइक इवन इफ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज गिवन टू यू, अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज गिवन टू यू सच एज दिस। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोगों ने इन दोनों में से करवा दिया, PCC से करवा दिया या फिर CrO3 से करवाया, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, पूरा कंपाउंड एग्जैक्टली सेम वैसा ही रहेगा हमारे रिएक्टेंट के तरीके, बस OH की जगह पे जो CH2OH है उसकी जगह पे CHO लग जाएगा। मतलब ये वाला जो ग्रुप है लास्ट वाला, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड CHO। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी सेम। ठीक है, क्योंकि कार्बन एटम्स का कुछ हो नहीं रहा है, चेन में कुछ भी क्लीवेज नहीं हो रहा कहीं भी। ठीक है, सो ये प्राइमरी अल्कोहल से वी हैव गॉट एन एल्डिहाइड। ठीक है, वहीं अगर हमने रिएक्शन KMnO4 के साथ में करवाया होता तो यहाँ CHO की जगह RCOOH होता, मतलब CHO की जगह COOH होता। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि अगर स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो वी विल गेट एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और
if we are using these two, the weaker ones, we will get aldehyde. Also, I will write down the name of PCC first, because it's an important question and you can get it. वो जरूरी नहीं है PCC ही लिखेंगे, short form. So PCC is pyridinium chlorochromate. ठीक है, this is PCC. So PA है 1C for chloro and 1C for chromate. So this is the reagent. So this was how to oxidize the primary alcohol. Now talking about the secondary alcohol. Secondary alcohol को oxidize करवाएंगे तो we will always get a ketone. How? ये cleavage कैसे होता है bond का, because secondary में एक alpha carbon के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है and alpha carbon is attached to two other carbon atoms. तो यहाँ पे OH. So this is the secondary alcohol. Suppose we are using some oxidizing agent, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी CC बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो रहा है, ये बात हमेशा याद रखना. कोई भी कार्बन रिमूव नहीं होगा, बस क्या होगा, यहाँ पे OH की जगह पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा. एंड सॉरी, दिस H विल बी रिमूव्ड. दिस इज द कंपाउंड. ठीक है, दिस इज कीटोन. ठीक है, तो दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड वी विल गेट अ कीटोन. नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट should be used over here? Generally we use chromic anhydride, or in short we write it as CrO3 as an oxidizing agent for oxidizing the 2-degree alcohol. Acha, for the case of tertiary alcohol, now let me draw the structure. This is CRR double prime OH. ठीक है, अब टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. क्यों? क्योंकि वो कीटोन या फिर एल्डिहाइड नहीं बना सकते. कैसे? क्योंकि इफ डबल बॉन्ड, लाइक इफ वी वांट अ कार्बोनिल ग्रुप दैट मींस C डबल बॉन्ड O होना चाहिए. अब डबल बॉन्ड आने के लिए वन ऑफ द कार्बन, वन ऑफ दिस बॉन्ड शुड ब्रेक. वन ऑफ द बॉन्ड ब्रेकेज होगा तभी डबल बॉन्ड O आ पाएगा. सो दैट इज द रीजन टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. नो ऑक्सीडेशन. ठीक है, लेकिन इफ वी सपोज वी आर यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन टर्शरी अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, लेकिन फिर होगा क्या, लाइक हाउ विल इट रिएक्ट विद दैट कंपाउंड. तो वी विल सी दैट कि सपोज इफ वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट टू एट अ हाई टेम्परेचर, तो क्योंकि कंडीशंस इतनी सीवियर हैं, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन है, सो दैट विल रिजल्ट इन द क्लीवेज ऑफ द CC बॉन्ड. ठीक है, तो अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, अगर वी आर यूजिंग सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जैसे जो हमारा रिएक्टेंट है ना, दैट विल रिमेन एज व्हाट इज इट, एज इट इज. ठीक है, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. लेकिन इफ वी आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट द हाई टेम्परेचर, सो दैट विल रिजल्ट इन द क्लीवेज ऑफ द CC बॉन्ड. कोई ना कोई CC बॉन्ड टूट जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. मिक्सचर कैसे? अब मिक्सचर मतलब कि कौन सा RC वाला बॉन्ड टूटेगा, या फिर R प्राइम C वाला बॉन्ड अब टूट रहा है, या फिर R डबल प्राइम C वाला बॉन्ड टूट रहा है. ठीक है, तो कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा एंड वी विल गेट अ कीटोन. ठीक है, सो वी कैन गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर हियर. सॉरी, वी आर नॉट गेटिंग अ कीटोन बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो आई विल राइट इट डाउन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हाई टेम्परेचर. ठीक है, सीवियर कंडीशन होना चाहिए, एक्सट्रीम कंडीशन होना चाहिए, तभी बॉन्ड टूटेगा. बॉन्ड का क्लीवेज इज नॉट दैट इजी. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर यूज होंगी, सो वी विल गेट द प्रोडक्ट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल में देखा कि इफ वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, we will always get the carboxylic acid. Similarly, यहाँ पे भी हम strong यूज कर रहे हैं ना, and we are getting the carboxylic acid. So tertiary से हमें aldehyde या फिर ketone कभी नहीं मिलेगा. ठीक है, we will always get a carboxylic acid and that too will be a mixture. तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि then you need to perform 10 other reactions for separating that mixture.
मतलब अगर हमें कोई स्पेसिफिक एसिड चाहिए तो फिर हमें उस मिक्सचर में से उस स्पेसिफिक एसिड को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन दिस दिस टेक्निक इज नॉट जनरली यूज्ड, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, जैसे कि क्या एसिड बनेगा, suppose first our RC bond is breaking, so we will be having R prime carbon COOH and R double prime, ठीक है। तो R prime ब्रेक हो गया और उसी के साथ में हमें इफ यू टॉक अबाउट द अदर कंपाउंड, ठीक है, अगर अगर इफ R prime C bond is breaking then we will get C, ठीक है, R R prime एंड डबल आर प्राइम, ऐसे, ठीक है। तो ये जो तीनों ग्रुप्स हैं उनमें कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा एंड इट विल गिव अ न्यू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दीज विल बी द प्रोडक्ट्स एंड दिस विल फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is the clear difference between a secondary, primary and the tertiary alcohols, कि which kind of oxidizing agent are you using and what kind of product are you getting, ठीक है। ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। So this was all about the oxidation part, ठीक है। So as I told you, oxidation के अलावा भी एक तरीका है, is there some another way of dehydrogenation that we can use to prepare aldehydes and ketones using alcohol, ठीक है। So then I will discuss this, ठीक है। So talking about the dehydrogenation part, the second technique, dehydrogenation of alcohol. Now in this technique what we do is we pass the vapors of alcohol over the heated copper, ठीक है। सो ऐसा एक तरीका होता है हर एक रिएक्शन करने का। सो वेपर्स ऑफ अल्कोहल, वट एवर अल्कोहल वी आर यूजिंग, वेपर्स ऑफ अल्कोहल पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हीटेड कॉपर या फिर कोई और मेटल भी ले सकते हैं, जैसे सिल्वर भी ले सकते हैं जो डिहाइड्रोजनेशन में हेल्प करता हो। हीटेड कॉपर at 573 Kelvin. So this is the temperature that is mentioned. ये temperature important है। तो this is the technique and what happens is इसमें भी while using the different degree of alcohol, primary, secondary or tertiary, we will get the different products. So let's see. If we are using the primary alcohol, जो कि ये है, it has two, the alpha carbon has two hydrogens and we are doing the reaction. So obviously this primary alcohol, they will always give either the acid or the aldehyde, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल कीटोन कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल इस केस में दे विल ऑलवेज गिव एल्डिहाइड, ठीक है, बिकॉज कॉपर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग हियर। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, माइंडेड कॉपर इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर हियर, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना कार्बन के पास में, ये दोनों चले जाएंगे। टॉकिंग अबाउट द secondary, this is the secondary alcohol because the alpha carbon has got only one hydrogen. The temperature condition are same and here we will get, because we have two groups, R prime, this is a ketone, ठीक है। so यहाँ पे क्या डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, एक ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, एक हाइड्रोजन यहां से जा रहा था और एक हाइड्रोजन विच वॉज अटैच टू द अल्फा कार्बन, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन दे वर गेटिंग रिमूव्ड, ठीक है। सो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज आर नोन एज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग 1 degree and 2 degree अल्कोहल यूजिंग डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। अच्छा, now what will happen, tertiary as it is will not form aldehyde and ketone, ये तो हमने पहले भी देखा था। now what will happen if we react the tertiary alcohol in the same technique, so I will give you an example. tertiary alcohol will have no hydrogen, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, that is the reason dehydrogenation is not possible, ठीक है।
It is attached to 3 carbon atoms. Now if we react this with copper and 573 Kelvin, dehydrogenation तो हो नहीं पाएगा because there is no hydrogen, no alpha hydrogen, right? So what will happen is dehydration. Dehydration मतलब the removal of water molecule will take place. ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला OH और कोई भी एक H, मतलब किसी भी, मतलब ये यहाँ से एक H सपोज करिए, ये वाला H is getting removed. So that is the hydration. Dehydration मतलब the removal of water molecule, H2O, the removal of H2O molecule. So that will result in the formation of a double bond. So compound will be this. ठीक है, I am considering कि the hydrogen that is getting removed is from this वाला this carbon atom, ये वाला. ठीक है, so इस वजह से double bond भी यहीं पे आएगा, इसी जगह पे, between these two carbon atoms, and ये वाला OH is getting removed. ठीक है, तो water remove हो रहा है, that is why we call it as dehydration reaction. ठीक है, dehydration reaction. Similarly, this is a simple compound. If we are having some other complex compound, in the case of tertiary alcohol, the similar case would be there. कोई भी alpha hydrogen remove हो सकता है for the case of water removal, and we will get alkene. And it may be possible that we get a mixture of alkene. वो depend करता है कि कौन सा alcohol हम use कर रहे हैं. ठीक है. So this was all about the hydrogenation of alcohol and how to get aldehyde and ketone. ठीक है. So these are the two methods that are generally applied for getting aldehyde and ketone. So we have discussed two ways of preparing aldehyde and ketone using alcohols. First is the oxidation and the dehydrogenation. In the next lecture, we will discuss how we can prepare aldehyde and ketone using alkenes and alkynes, that is hydrocarbons. Okay, that is also interesting, and we will discuss it in the next lecture along with the separate ways of preparation. So this was all for today. Thank you, class.